Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for problem E, price maximization from Codeforces round 797. Okay, so we will read the problem, then we will discuss the approach and then obviously the code. But before that, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Coding Talkies, you know already what you have to do. Just go in YouTube, subscribe this YouTube channel because I post regular editorial videos in this. Also, what else blockchain related videos and daily life problems which you like search over YouTube or everywhere. Okay, so just go and subscribe this YouTube channel. Now let's start with the problem. A batch of n goods, n is an even number, is brought to the store, ith of which has weight ai. Before selling the goods, there must be packed into packages. After packing, the following will be done. There will be n by 2 packages. Each package contains exactly 2 goods, so it is obvious because n is even and you have to like pair them, pair all n numbers into n by 2 packages. Okay, the weight of each package that contains good of index I and j will be ai plus aj. So again an obvious thing that if you pair two values together, then that package weight will be ai plus aj. With this cause, the cost of a package of weight x is always lower, you can say steel or floor of x by k. Okay, rounded down, where k is a fixed number given value. K is already given in the problem. Now pack the goods to the packages so that the revenue from their sale is maximized. Okay, in other words, make such n by 2 pairs of given goods that sum of values of rounded down value of xi by k, where xi is the weight of package number I is maximal. Question is quite clear. What is given in the question? We have an array whose length is n, where n is an even value. Okay, and n is an even value, and we have to pair all the numbers together, and we will get n by 2 pairs. Okay, x1 y1, suppose x2 y2, in the same way up to n by 2 pairs, x n by 2, sorry, what happened? Okay, x n by 2, y n by 2. Okay, now what you need to do, you need to make such pairs such that ये जो x plus 1 x1 plus y1 है by k gives maximum value. Okay, what you need to do basically, in सबका sum x1 plus y1 by k plus x2 plus y2 by k plus x3 plus y3 by k plus xn by 2 plus yn by 2 by k must get maximized. Okay, अब बाई के का मतलब ऑब्वियसली राउंडेड डाउन वैल्यू. ठीक है, अब राउंडेड डाउन वैल्यू में तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि तुम्हें बेसिकली ऐसे पेयर्स बनाने हैं सच दैट x1 प्लस y1 जो है वो सब काइंड ऑफ या तो बिल्कुल ही डिविजिबल हो k से. ओके, पूरा का पूरा डिविजिबल हो, देन दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन. ओके, अदरवाइज अगर डिविजिबल नहीं है सच दैट x1 ने कुछ तुम्हारा रिमाइंडर दिया 3 और y1 ने रिमाइंडर दिया 4 और k की वैल्यू थी तुम्हारी 5. ठीक है, तो तुम्हें x1 को किसी ऐसी वैल्यू के साथ पेयर अप करना है जो रिमाइंडर दे रहा हो 2. ओके, बिकॉज x1 रिमाइंडर दे रहा है 3 और y1 रिमाइंडर दे रहा है 4. ठीक है, तो इन दोनों को पेयर अप करने से एग्जैक्टली होगा क्या, जब इन दोनों को पेयर अप करोगे तो जो तुम्हारी दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 3 प्लस 4 भी ऐड होगा ऑब्वियसली. ठीक, तो ये 7 बाई 5 बनेगा और यहाँ पे तुम देखोगे कि दो वैल्यूज़ स्टिल वेस्ट होंगी. ठीक है, 7 बाई 5 में. तो बेसिकली तुम्हें x1 को ऐसा पेयर करना है सच दैट जो 3 है और 2 है वो एक साथ पेयर हो, रिमाइंडर 3 और 2. राइट, काइंड ऑफ इस प्रॉब्लम को तुम ब्रूट की तरह लो, तुम्हें ब्रूटली पेयर्स चुनने पड़ेंगे सच दैट ये जो वेस्ट है ये कम से कम हो. अब ऑब्वियसली इन सम केसेस वेस्ट इज गोना हैपन. ठीक है, कहीं ना कहीं वेस्ट होगा ही होगा, बट तुम्हें इस वेस्ट को मिनिमाइज करना टू मैक्सिमाइज योर आंसर. राइट, ओके. अब इफ आई राइट फाइनल सॉल्यूशन, वो तुम्हारा कुछ ऐसे बनेगा.
दिस इज x1, सॉरी, x1 प्लस y1 बाई के प्लस x2 प्लस y2 बाई के प्लस x3 प्लस y3 बाई के, ठीक है, अप टू xn/2 प्लस yn/2 बाई के, ठीक है, राइट। इसको तुम्हें मैक्सिमाइज करना है, ये तुम्हारा आंसर है। सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग मैं बोलता भी जा रहा हूँ, सब समझ में आ रहा होगा। अब बेसिकली x1 प्लस y1 बाई के को तुम सिंपली क्या लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपली, अगर इसकी जगह मैं पहले ये फाइंड आउट कर लूँ कि कौन सा नंबर, सपोज x1 बाई के करने में मुझे कितना मॉडुलो मिल रहा है, अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूँ, ठीक है। अब मुझे बेस्ट पेयर्स निकालने, बेस्ट पेयर्स निकालने के लिए व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट कि अगर x1 3 रिमाइंडर दे रहा है k के साथ, तो मैं कोई ऐसा नंबर निकालूं जिसको y1 बनाऊं सच दैट वो k माइनस 3 रिमाइंडर दे रहा हूँ, राइट। तो k माइनस 3 और 3 जो है वो ऐड होके फाइनली फुली डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है, और मेरा जो वेस्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगा। मुझे फाइंड डायरेक्टली या फिर इन द एंड वेस्ट मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो वेस्ट मिनिमाइज करने के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पहले इसके रिमाइंडर्स, ठीक है। तो मैं इसके रिमाइंडर्स फाइंड आउट कर लूँगा। मैं बोलूँगा कि x1 बाई के करने में कितना रिमाइंडर आ रहा है, सपोज 3, y1 बाई के करने में सपोज 4, x2 बाई के करने में 1, 3, 4, 3, 2, 7 सपोज इन द केस, ठीक है। k इज इक्वल्स टू 8 है यहाँ। अब ये सारे रिमाइंडर्स हो गए, ठीक है। सपोज k की वैल्यू 8 थी, इसको मान लो 5 है यहाँ पे, ठीक है, ओके, ये 5 था। अब तुम बोलोगे कि इस वाले x1 को मुझे इसके साथ पेयर करना चाहिए, ठीक है, 3 के साथ 5 पेयर करना चाहिए, दैट इज़ ट्रू। मुझे यही करना है, मुझे इसी तरह करना है। तो सपोज अब मैं पेयर ढूंढता हूँ, अगर x1 प्लस xn/2 अपॉन k, इसका पूरा सॉल्यूशन ब्रूट है, ठीक है। कैसे है वो मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अब लॉजिक तुम्हें इन द एंड समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ तुम्हें थिंक आउट ब्रूटली करना ही होगा, ठीक है। कोई एक एल्गोरिदम या कुछ नहीं लग रहा है इस प्रॉब्लम में, फाइन। तो अब तुम यहाँ पे देखोगे कि x1 प्लस, अब ये तो फुली डिविजिबल हो गए, बट क्या तुम्हें इतना करने की ज़रूरत थी? क्या तुम अपना फाइनल आंसर पहले से बिल्डअप थोड़ा सा कर सकते हो? दैट मीन्स कि अगर तुमने ये निकाल लिया है, ठीक है, तो अब बेसिकली तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास एक एरे है जिसकी लेंथ कितनी होगी। अगर मुझे ये सारे नंबर्स के लिए पता है, दैट इज एक 3 दे रहा है, एक 4 दे रहा है, एक 1 दे रहा है, एक 3 दे रहा है, एक 4, एक 3, एक 5, एक 7, ठीक है। अगर मान लो 5 देने वाले नंबर्स मेरे पास कुछ 7 होते, ठीक है, 7 नंबर्स थे जो 5 दे रहे थे और 6 नंबर्स थे जो 3 दे रहे थे, मैं उन 6 नंबर्स को इन 6 नंबर्स के साथ पेयर कर दूंगा, ठीक है, और मेरा आंसर कितने से इंक्रीज हो जाएगा, ध्यान से सुनना। 6 नंबर्स थे जो 3 दे रहे थे और 7 नंबर्स थे जो 5 दे रहे थे, राइट। तो मैंने 6 नंबर्स ऐसे बना लिए हैं जो 3 + 5 करके डिविजिबल हो जाएंगे। इट मीन्स मेरा जो आंसर है वो +6 हो जाएगा, ऑब्वियस, ठीक है, क्योंकि मैंने एक पेयर बनाया और एक पेयर सिंपली बनाने के बाद मेरा आंसर +1 हो जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, कुछ तुम्हारी प्राइमरी वैल्यू x1 की रही होगी, प्लस वो 3 एक्स्ट्रा दे रहा है, ठीक है, प्लस xn/2 की कोई प्राइमरी वैल्यू रही होगी x'(n/2) प्लस वो 5 एक्स्ट्रा दे रहा है, अपॉन k कर रहे हो तुम, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये कम्प्लीटली डिविजिबल है ऑलरेडी k से, और ये वाली वैल्यू भी है ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। ये वैल्यूज़ तुम्हें पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो तुम क्या इनको डायरेक्टली अपने आंसर में, अब सपोज ये एक पेयर था तुम्हारा, राइट। अगर मैं इसको नीचे लिखूँ, सपोज x'1 + 3 प्लस x'(n/2) प्लस x'(n/2) प्लस 5 अपॉन k, ठीक है। तुम्हारा कुछ आंसर पहले से रहा होगा, तुम्हें इस पेयर को अपने आंसर में ऐड करना है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। जहाँ पे x1' जो है और जो x'(n/2) है, ये दो प्राइमरी वैल्यूज़ हैं जो कि फुली डिविजिबल हैं k से, ठीक है। और ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये तुम्हारी है x1,
ठीक है, और ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये तुम्हारी है xn/2। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें इस कंप्लीट वैल्यू को इसमें ऐड करना है, इसकी जगह तुम ऐसे भी तो कर सकते हो, आंसर प्लस x1/k प्लस xn/2/k। ठीक है, प्लस बाद में जब तुम पेयर बनाओगे 3 और 5 का, तो वो अपने वन से वो वाले पेयर्स ऐड हो जाएंगे। सपोज नंबर ऑफ पेयर्स, अगर मैं यहाँ पे वो बात करूँ फिर से जो मैंने ऊपर करी थी, इन केस सपोज करो कि तुम्हारे पास जो 3 थे वो 6 थे और जो 5 थे वो 7 थे, तो यहाँ से ये तुम्हारे आंसर में कितना ऐड करेंगे, 6 ऑब्वियसली, क्योंकि तुम 3 + 3 + 3 प्लस 7 + 7 + 11 अप टू 6 टाइम्स, तो टोटल आंसर में कितना बाई के, टोटल आंसर में कितना ऐड हो, +6। तो तुम क्या ऐसे कर सकते हो, तुम ऑब्वियसली ऐसे कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे जो x1/k है ये सिंपली तुम्हें क्या दे देगा, x1-/k, x1-/k और x1/k इज द सेम थिंग। मैं C++ में बात कर रहा हूँ। ठीक है, x1/k करोगे तो सिंपली तुम्हें राउंडेड डाउन वैल्यू ही मिलेगी। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है, फाइन। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने आंसर में जो ईच नंबर का जो खुद का कंक्लूजन होगा, ठीक है, जो भी पार्ट होगा वो तुम डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, क्योंकि राउंडेड डाउन वैल्यू, और यू कैन से जो राउंडेड डाउन वैल्यू है a1/k की या ai/k की, तुम डायरेक्टली अपने आंसर में ऐड कर सकते हो। ठीक है, प्लस बाद में जो उसकी रिमाइंडर की वैल्यूज़ हैं, जो 3 और 5 तुम्हारे पास बच रहे हैं, उनके तुम पेयर्स बनाओगे। ठीक है, और उन पेयर्स में से जितने भी तुम्हारे पेयर्स बन रहे होंगे, उन सब पेयर्स में से अपने आंसर में वाले पेयर्स ऐड करते जाओ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुमने थोड़ा सा जनरलाइज कर लिया प्रॉब्लम को। अभी कोड दिखाऊंगा तो और इजीली समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, अगर अभी तक समझ में आ रहा या फिर नहीं आ रहा तो तुम क्वेश्चन ब्रीफ में मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक है अपना, तो तुम डायरेक्टली अपने आंसर की जितनी वैल्यूज़ हैं तुम उनकी राउंडेड वैल्यूज़ या फिर ai/k डायरेक्टली आंसर में ऐड कर सकते हो, और उनके जो रिमाइंडर्स हैं। ठीक है, अब सपोज कुछ वैल्यूज़, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो 3 रिमाइंडर दे रही थी, उनकी फ्रिक्वेंसी 4 है, ये 3 रिमाइंडर वाली। जो 5 रिमाइंडर दे रही थी उनकी 1 है। ठीक है, तो अब तुम दूसरे रिमाइंडर्स के लिए क्या कर सकते हो उसके बारे में बात कर सकते हैं। अब मैक्सिमम पॉसिबल रिमाइंडर्स कौन कौन से हो सकते हैं ये देखते हैं। k से डिवाइड कर रहे हो तो टोटल रिमाइंडर्स कितने होंगे, k की वैल्यू सपोज यहाँ पे 8 है, तो रिमाइंडर पॉसिबल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या 1 से k-1 तक के पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं तुम्हारे पास। ठीक है, अब सपोज इन एनी केस जो नंबर्स 1 रिमाइंडर दे रहे थे उनकी फ्रिक्वेंसी थी 5। ठीक है, जो 7 दे रहे थे उनकी 2 3, ये फ्रिक्वेंसी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये सारे नंबर्स की फ्रिक्वेंसी है। अब तुम चाहते हो कि ये जो 7 वाले नंबर्स हैं ये किन के साथ पेयर अप हो जाए, 1 के साथ, राइट। ये जब 1 के साथ पेयर होंगे जब भी तुम्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट देंगे। अब तुम्हें ब्रूटली पेयर अप करना है खाली रिमाइंडर्स को। ठीक है, 7 रिमाइंडर्स वाले नंबर हैं, 1 रिमाइंडर्स वाले नंबर हैं, तो ब्रूटली पेयर अप कर दो 1 के साथ। ठीक है, अब 2 थे, 2 पेयर अप हो गए, अपने आंसर में +2 कर दो और सिंपली यहाँ से इसको 0 और इसको 3 बना दो, राइट। अब तुम आओगे 6 में। ठीक है, 7 का पेयर अप कर लिया, 7 को यहाँ से हटा दो, 6 में आए। 6 को तुम्हें किसके साथ पेयर अप करना पड़ेगा, 2 के साथ। 2 में जाओ, सिंपली 2 पे 5 है तो इसको 0 बना दो, इसको 2 बना दो ऑब्वियसली, क्योंकि 3 2 चले जाएंगे इसके साथ, और अपने आंसर में +3 कर दो, राइट। अब तुम आए 5 में। 5 को तुम्हें पेयर करना पड़ेगा 3 के साथ, 4 और 4 है, दोनों को 0 बना दो। ठीक है, अपने आंसर में 4 ऐड कर दो। ठीक है, फाइन। अब ये तो हो गया तुम्हारा केस जब तुम हर नंबर के लिए उसके करेस्पॉन्डिंग नंबर्स मिल रहे थे। ठीक है, कोई एक केस ऐसा भी हो सकता है जब इक्वल नंबर्स ना मिले तुम्हें।
वहाँ पे तुम सिंपली क्या करोगे, सॉरी गाइस ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये नेट की वजह से भी काफ़ी बार होता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन बोर्ड है। तो तुम्हें मान लो मैं ये वाले केस की बात कर रहा हूँ, ये 7 है और ये 1 है। 7 तुम्हारे पास है मान लो 6 और 1 तुम्हारे पास है 2, ठीक है, और 2 की फ्रिक्वेंसी है 5। तो तुम क्या करोगे, तुम्हें 6 1 चाहिए, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास 6 7s हैं, तो तुम्हें 6 1 चाहिए ताकि सारे पेयर्स के से डिविजिबल हो जाए। लेकिन नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम सिंपली क्या करोगे, 2 तो 1 के साथ पेयर कर दोगे, ठीक है, और बाकी बची हुए 4 2 के साथ पेयर कर दोगे। अब यहाँ पे होगा क्या, जो तुम्हारा वेस्ट है, ठीक है, 7 + 2 कर रहे हो तुम, तो जो वेस्ट है तुम्हारा वो 1 रहेगा और यू कैन से मिनिमाइज्ड ही रहेगा, राइट, क्योंकि तुम 1 के जस्ट आगे आके 2 पे ही आ रहे हो, तो वेट मिनिमाइज रहेगा। अब सपोज इन एनी केस ये जो 2 हैं ये भी 3 ही होते खाली तुम्हारे पास, ठीक है, 3 2 5, तो तुम उसको 3 के साथ पेयर अप करते, ठीक है। ब्रूट फोर्स है जहाँ पे तुम्हें वेस्ट मिनिमाइज करना है, तो तुम्हारे 2 भी खत्म हो गए तो तुम 3 के साथ पेयर अप करो, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। और अपने आंसर में कैसे ऐड करना है ऑलरेडी टोल्ड। अब मैं तुम्हें कोड दिखाता हूँ और इजीली समझ में आ जाएगा, और अगर फिर भी ना आए यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ओके, हियर इज़ द थिंग, एन के की वैल्यू ले ली, एरे का इनपुट ले लिया, फिर मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे बी में फ्रिक्वेंसी एरे बनाई ऑफ रिमाइंडर्स, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स चलेगा, जे 0 से n तक चला, और जिसकी भी सबसे पहली बात कितने लेंथ की होगी, ओनली के लेंथ की, जहाँ पे 1 से k-1 तक के नंबर्स होंगे उनकी फ्रिक्वेंसी निकाल रहा हूँ, वो सिंपली निकाल सकते हो ए जे मॉडलो के करके, जितना भी जिसकी फ्रिक्वेंसी होगी +1 हो जाएगा। अपना आंसर लिया, आंसर में तुम हर नंबर का कंट्रीब्यूशन जो है वो इनिशियली डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, ये राउंडेड डाउन वैल्यू है, ठीक है। अब तुम्हें इस फ्रिक्वेंसी एरे का यूज़ करके जो भी रिमाइंडर्स हैं उनको कैसे पेयर अप करना है उसको अपने आंसर में ऐड करना है। तो बेसिकली लिया क्या तुमने, अब तुम्हारे पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है, एक पी को तुमने 1 बना लिया इनिशियली, जे लिया, जे को तुमने k-1 से शुरू किया, ठीक है, अपना जो पी था वो यहाँ पे फिक्स कर लिया, पी जे को तुमने यहाँ से शुरू किया, 7 को सबसे पहले पी के साथ पेयर करो, ठीक है, जितने नंबर ऑफ पीज हैं कर लो, नहीं है तो जस्ट आगे चले जाओ, ठीक है। पी की वैल्यू फिक्स कर दी है और 7 की वैल्यूज़ तुमने यहाँ से आगे बढ़ानी शुरू कर दी, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। पी की वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर दी, 7 की वैल्यू सॉरी जे की वैल्यू में तुम इटरेट कर रहे हो, जो कि लास्ट से k-1 फिर k-2 फिर अप टू आती जाएगी आगे। पी की वैल्यू बार बार अपडेट भी करनी पड़ेगी, जो कि मैक्सिमम ऑफ पी और k-j, राइट। तो p की वैल्यू p भी क्योंकि आगे बढ़ता जाएगा हर लूप में, राइट। जैसे ही तुम 7 से 6 में आओगे तो अब तुम्हारा जो दूसरा नंबर है जो कि p है उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी 2, दैट्स वाई k-j से अपडेट भी करना। अब यहाँ पे आओ, ये वाला लूप देखो, वाइल p इज़ लेस देन k एंड b ऑफ j इज़ ग्रेटर देन 0। अब तुम करंट j के लिए p ढूंढ, ठीक है, कितने p तुम्हें मिल सकते हैं, और जितने भी p मिलेंगे उतनी टाइम्स तुम अपना आंसर इंक्रीज कर दोगे। अब आए, अब वाइल जैसे ही तुम्हें p मिल गया जिसकी फ्रिक्वेंसी 0 नहीं है वहीं पे तुम रुक जाओगे, ठीक है। तो एक लूप लगाया, वाइल p bp फ्रिक्वेंसी ऑफ p इज़ 0, तुम सिंपली चलते रहो आगे, p को प्लस प्लस करते रहो, बट अगर कहीं पे भी p k बन गया इट मीन्स कि तुम ओवरफ्लो कर चुके हो, यहाँ पे ब्रेक कर जाओ, ठीक है। अब तुम्हें लेफ़्ट की साइड में एक ऐसा नंबर इस लूप के एंड में मिल गया है जहाँ पे तुम अपने j को पेयर अप कर सकते हो, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, मैंने यहाँ पे बहुत देर तक समझाया है। ये जो तुम्हारा है ये है तुम्हारा j और p का इटरेटर तुम यहाँ से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है j तुम्हारा अभी भी बचा हुआ है, ठीक है, जो 6 है, और p यहाँ पे नहीं मिल रहा तुम्हें पेयर अप करने के लिए, तो तुम p को आगे बढ़ा रहे हो सिंपली, ठीक है। तो इस लूप के एंड में तुम्हें क्या मिल जाएगा, ऐसा p जो प्रेजेंट है और j के साथ पेयर अप कर सकता है। अब वो अगर k है तो ब्रेक कर जाओ, अदरवाइज नीचे आओ, सिंपल सी कंडीशन डालो, एक पॉसिबिलिटी है कि p और j इक्वल हो गए हों, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इक्वल ना हो, ठीक है। तो अगर इक्वल हैं उसके लिए सिंपली पहले चेक कर लो, अगर इक्वल हैं
तो बेसिकली उनकी फ्रिक्वेंसी 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए पेयर बनाने के लिए। इट्स ऑब्वियस, अगर P और J इक्वल हो गए, एक जगह पे आ गए, सॉरी, सपोज ये 8 है, ठीक है, और यहाँ पे 4 होता, ठीक है, तो P भी यहीं पे होता, J भी यहीं पे होता, ठीक है। तो अब तुम दो फोर्स को एक साथ पेयर अप करोगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ये चीज़ होनी चाहिए, जब P डज नॉट इज इक्वल्स टू J है तो तुम्हारा जो BP है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। उस केस में तुम सिंपली अपना आंसर इंक्रीज करो, BP को माइनस माइनस उन दोनों की फ्रिक्वेंसी कम करो। अगर ऐसा तुम्हारा P कहीं तुम्हें मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल्स टू है या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो वहीं पे ब्रेक हो जाओ और K की वैल्यू एक वापस आ जाओ। 7 का पेयर तुम नहीं बना सकते, ठीक है, तो तुम 6 में आ जाओ। सिंपल सा सॉल्यूशन था, ब्रूट फोर्सली तुम्हें सारे रिमाइंडर्स के पेयर्स बनाने थे, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन अगेन, एंड इफ यू हैवेंट चेक न्यूटन स्कूल येट, just go check their pay after placement program where they will train you as a full stack developer. And not only this, after that they will also get you placed in different companies, and most amazing thing that it's their pay after placement program in which you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of the company, okay। तो मिनिमम CTC जो वो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो है 5 to 40 LPA। अगर तुम्हें और जानना है तुम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी मिल जाएगा, जस्ट कॉन्टैक्ट इन दैट and get the most out of it. Thank you guys for watching this video.